कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट यू आर स्टेइंग एट योर होम and you are trying to cope up with this COVID-19 situation. You are staying at your home, taking online classes of every subject. But students, right now this times gives you one of the precious times to you. You can use this time to gain more and more. You can take a training, you can just do any other course, many things you have option to do. Okay, so students, with this wish, this is Virendra, your computer teacher. I am here to give you the important exercise solutions, and in this we'll try to cover out the exercise of chapter number 2, that is Windows 7. And students, this video belongs to class 7th student, and class 7th student will try to figure out the assessment, your evaluation, that how much knowledge you have gained in this chapter, right? So right now in this we are having various kinds of question. Likewise, if you talk about your first type of question is MCQ, then after you will have fill in the blanks, right? In the same way you can have your state true and false, right? And then after finally you have to come with application based question. What application based question is? Application based questions. Then after you can use here, answer the following questions. Answer the following questions, right? So these are some questions here, and you can just try to memorize the answer of these questions, try to understand these questions, right? And question this, the fourth and fifth, these two things should be in your fair copy, right? And question number 1, 2 and 3, okay, this one and this one, you can do these questions in your book only, okay, by using your pencil, right? And whatever the notes you have prepared, and apart from the exercise part, you can just use the fourth part and fifth part in your fair copy, right students? So we will discuss each and every question in a detailed manner. We'll try to understand each and everything, right, in a thorough manner, okay? But you have to watch this video from starting till the end, right? So that each and everything is very much clear to you, right? So without wasting any other time, let's come to our PowerPoint presentation, where I have given the answers and the elaboration of the questions here, okay, with their solutions. Please come. Okay students, now we are going to cover the exercise of chapter number 2, that is Windows 7. So in this chapter we are having some kind of questions which are given in exercise, and we'll try to find out the solution of all the questions, right? So students, now it's time to move to the next slide to have the questions, and then after you are having your answer. But before proceeding, I just want to allow you to give the answer on YouTube comment as well as WhatsApp also. Just think about the answer, and whatever the knowledge you have gained in chapter number 2, just try to give it out, right? Okay, just move to the next slide. So question number 1 is fill in the blanks. In this we are having some questions, and just we have to fill up the blanks which are already there. So question number 1 says that Windows has simplified the task of dash in computer.
मतलब क्या हुआ, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने कंप्यूटर पे काम करने का तरीका काफ़ी चेंज कर दिया है, काफ़ी इसने हेल्प की है कि कंप्यूटर पे किस तरीके से काम किया जाता है। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ, सिंप्लीफाई कर दिया, आसान बना दिया, ये इसका एक मीनिंग हो गया। सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू हैव द आंसर बाय यूजिंग योर यूट्यूब कमेंट, जस्ट गिव इट आउट, okay, and if your answer is correct, definitely you will have like from my side. Okay, so let's have the answer. So the answer is managing data, right? Windows had simplified the task of managing data in computer. मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा है उसको मैनेज करना काफ़ी आसान बना दिया है। ठीक है, चलिए आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Dash views displays each file and folder on a separate row along with detailed information. Dash view वो कौन सा व्यू है जिसकी हेल्प से हर एक फाइल और फोल्डर एक सेपरेट रो में आ जाती है, और जब सेपरेट रो में आ जाएगी तो अपने डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ आएगी। वो कौन सा व्यू है? ओके, कई तरह के व्यू मैंने आपको बता रखे हैं, जैसे स्मॉल, टाइल्स, ठीक है, और भी बहुत तरह के मैंने बता रखे हैं। सो जितने भी तरह के मैंने बताए हैं आपको, उसी में से एक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप अपना आंसर दीजिए और मैं अपना आंसर देने जा रहा हूँ मैं। सो लेट्स हैव द आंसर। आंसर इज कंटेंट, राइट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। टू चेंज द माउस सेटिंग क्लिक ऑन डैश ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल। मतलब क्या हुआ, माउस की जो सेटिंग्स हैं आप उसकी चेंज करना चाहते हैं, आप किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कंट्रोल पैनल में। ठीक है, सो इसका आंसर पाने के लिए मैं आंसर बता देता हूँ। मैं इसका आंसर होगा माउस। ठीक है, माउस ऑप्शन वहाँ अवेलेबल होगा, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पर उसका जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर वहाँ पर जो भी चेंजेस आप करना चाहें वो चेंजेस आप कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए बहुत सारे बच्चों ने अभी अपने आंसर्स को बिल्कुल सही बताया है, ऐसे ही आप बताते रहिए आप। सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. While using the keyboard as mouse, dash key is used for diagonally left upward movement. मतलब क्या हुआ, आपका जो है समझिए कीबोर्ड जो है माउस की तरह काम कर रहा है। कीबोर्ड जो है माउस की तरह काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपके माउस उसमें काम नहीं कर रहा है, तो आपने कीबोर्ड को ही आपने माउस की तरह यूज़ किया है। अब आपको बताना है वो कौन सा की है कीबोर्ड के अंदर जिसकी हेल्प से हम माउस पॉइंटर को, ठीक है, डायगोनली लेफ्ट अपवर्ड हम मूव कर सकते हैं आप। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन का मतलब है। नाउ इट्स टाइम टू हैव द आंसर। आंसर इज होम की। ठीक है, आप होम की का इस्तेमाल करके आप ऐसा कर सकते हैं आप। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन 5 says that dash in the state in which a computer shut down to save power, but first save everything in the memory on hard disk. मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ऐसा कौन सा स्टेट, ऐसी कौन सी परिस्थिति है, ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें कि कंप्यूटर शट डाउन करने से पहले या पावर की बचत करते समय सारे डेटा को मेमोरी में यानी कि आपके हार्ड डिस्क में सेव कर देता है। वो क्या चीज़ है? ओके, वो है आपका हाइबरनेशन। हाइबरनेशन जब आप करेंगे आप अपने कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर शट डाउन तो हो जाएगा, पावर सेव होता रहेगा आपका, और उससे पहले सारे जो डेटाज आपके सारे जो विंडोज़ ओपन हुए प्रॉपर तरीके से शट डाउन हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका ये हाइबरनेशन में चला जाएगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं शटडाउन की, हम तो शटडाउन में प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ें शटडाउन होती हैं, और जब आप रीस्टार्ट करते हैं या स्टार्ट करते हैं आप, तो बिल्कुल नए सिरे से आपकी चीज़ें ओपन होती हैं, स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो दोनों में काफ़ी अंतर है, प्लीज़ इसको आप याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, so now students, I hope the Philips is very much clear to you, and I don't think so if you have any kind of doubt, but I'm always here that if you have any kind of doubt related to any of the questions, okay, so please ping me on the WhatsApp as well as YouTube comment. I'm always here to give you answer of all questions, right?
Let's come to the next slide to have next question. Next question is true false, right? So some questions are there and you have to analyze that whether this statement is saying true or false. Question number 1. Data in a computer is organized into folders and files. कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा है क्या वो फोल्डर और फाइल्स के रूप में ऑर्गेनाइज होता है, व्यवस्थित होता है? बिल्कुल व्यवस्थित होता है। इसका आंसर यस होना चाहिए, यस। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ओके, और आपने भी बिल्कुल सही आंसर बताया है। मैं अपने यूट्यूब कमेंट में जितने भी जवाब आ रहे हैं सबको मैं लाइक करता चल रहा हूँ मैं, ठीक है, जिनके भी आंसर सही हैं। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. डेटा वंस स्टोर्ड इन अ फाइल कैन नॉट चेंज। जो डेटा आपने फाइल में स्टोर कर दिया क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ठीक है, सो लेट्स हैव द आंसर। आंसर इज फॉल्स। डेटा आपने अगर कोई फाइल बनाई है तो जो भी चेंजेस करना चाहे कर सकते हैं आप, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि वो राइट प्रोटेक्टेड ना हो, ठीक है। आपका वो रीड एंड राइट बोथ आपको हो ताकि उसमें जो भी चेंजेस करना चाहें हम कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. द स्टिकी की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज कीप इन माइंड. द स्टिकी की फीचर्स ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट्स इफ 2 कीज आर प्रेस टुगेदर. जब 2 की एक साथ हम प्रेस करते हैं तो क्या स्टिकी की आपका डीएक्टिवेट हो जाती है? आपको बताना है यस या नो। आंसर होगा इसका ट्रू, बिल्कुल सही है। स्टिकी की का मतलब ये होता है कि आपको 2 की एक साथ दबाने की ज़रूरत नहीं है, एक की से ही 2 की का काम आपका चल जाएगा। एक ही की प्रेस करेंगे लेकिन काम आपके जो फंक्शन होगा वो 2 की के बराबर होगा आपका, इसलिए इसका नाम हो गया है स्टिकी की, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। देयर आर नो, अब आपके बातें हैं क्वेश्चन 4 में। देयर आर 2 पैन्स इन द विंडोज एक्सप्लोरर। क्या विंडोज एक्सप्लोरर में 2 पैन्स होते हैं? यस या नो? बिल्कुल होते हैं। आप जब विंडोज एक्सप्लोरर अपने कंप्यूटर में ओपन करेंगे सो यू विल गेट लेफ्ट साइड हैविंग द नेविगेशन पैन, ऑन द राइट हैंड साइड यू आर हैविंग योर कंटेंट पैन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेविगेशन पैन में जिस भी फोल्डर पर क्लिक करेंगे उसके जो कंटेंट्स हैं आपको राइट साइड में आपको दिखेंगे आपको, ठीक है। राइट साइड में जब आपको फोल्डर दिख जाएंगे डबल क्लिक करके उसको आप ओपन कर सकते हैं आप, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में। Now students, it's time to move to question number 5. That's a very good question here. A small icon view is used to view the detailed information about the files and folder. About the files and folder. तो आपको यहाँ पे ये समझाना है ये कि जो भी आपका व्यू है, ठीक है, क्या उस व्यू में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है फाइल्स एंड फोल्डर की? क्या वो स्मॉल आइकन व्यू हो सकता है? ठीक है, अगर हाँ तो आपको बताना है ट्रू, अगर नहीं तो बताना है फॉल्स। लेट्स हैव द आंसर। आंसर इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि डिटेल जो इंफॉर्मेशन है कंटेंट व्यू में आपको दिख सकता है या एक्स्ट्रा लार्ज आइकन व्यू में दिख सकता है आपको, लेकिन आपको स्मॉल आइकन व्यू में नहीं दिख सकता। केवल आइकन का साइज आपका छोटा हो जाएगा। एक स्क्रीन पर कई सारे आइकन्स और फोल्डर्स को या फाइल्स को आप देख सकते हैं आप, ठीक है। ये रहे आपके 5 क्वेश्चन जो कि आपको ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड थे। नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ट्रू फॉल्स। द लेफ्ट पैन ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर डिस्प्लेज डिस्क ड्राइव एंड फोल्डर्स इन हायरार्किकल मैनर। जो विंडोज एक्सप्लोरर का लेफ्ट पैन है क्या वो डिस्क ड्राइव्स फोल्डर्स को हायरार्किकल मैनर में दिखाता है? अगर आपका आंसर सही है तो आप लिखिए ट्रू, अगर आंसर आपका गलत है तो लिखिए फॉल्स। स्टूडेंट्स, आप सभी ने आंसर, जितने भी आंसर बताए हैं मोस्टली आंसर अभी तक सही गए हैं। इसका भी आंसर आप बताइए। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये रहा आपका आंसर ट्रू। जब आप विंडोज एक्सप्लोरर को खोलेंगे तो लेफ्ट साइड में जो आपका नेविगेशन पैन है वहाँ पर आपको डिस्क ड्राइव्स फोल्डर हर एक चीज़ आपको एक हायरार्किकल मैनर में यानी कि अरेंज्ड वे में आपको मिलेगा आपको, ठीक है। जितने भी फोल्डर ए से होंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ अरेंज हो जाएंगे, आपको अरेंज नहीं करना पड़ेगा,
ठीक है, चलिए. नाउ स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज application based questions. Okay, see, these questions are application based questions. So first of all, in application based question, you have to understand what the question is saying to you, and once you are able to understand about the question, you have to write the answer, right? So how we are able to understand it? Okay, so students, right now, first of all, I'm just going to read the sentences which is given in application based question, and then we'll try to understand, and then we'll have the answer, right? So the question is, Ritu has to complete the assignment and submit it on the next day. रितु के पास कोई असाइनमेंट है, कोई होमवर्क है, वो उसे करना चाहती है और उसको अगले दिन सबमिट करना है. while typing all of sudden the keyboard of the system stopped working. तो सिस्टम पे काम ही कर रही थी, तो उसके पास जो कीबोर्ड है अचानक से काम करना बंद कर दिया. नाउ सजेस्ट टू हर द अल्टरनेट टू कंप्लीट द असाइनमेंट. कुछ अल्टरनेट सोल्यूशन उसको देना है जिसकी हेल्प से वो अपना काम पूरा कर सके. ठीक है, वो क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये हमें समझना है. सो ये रहा आपका क्वेश्चन. नाउ इट्स टाइम टू हैव द आंसर. ओके, सो इस तरह की सिचुएशन आपके पास भी आ सकती है, और किस तरीके से आप इसको रेक्टिफाई कर पाएंगे. अब ऐसा तो नहीं है कि आप इमीडिएटली मार्केट जाएंगे, नया कीबोर्ड आप खरीद लाएंगे आप. ठीक है, उसी समय आपको कुछ अल्टरनेट सोल्यूशन आपको चाहिए. क्या करेंगे आप, चलिए देखते हैं आप. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. विल ट्राई टू यूज़ द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड. हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को यूज़ करेंगे. किस तरीके से यूज़ करेंगे इसके मैंने स्टेप्स यहाँ दे रखे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन गो टू द ऑल प्रोग्राम्स, देन आफ्टर एसेसरीज, देन इन एसेसरीज you are having your ease of access. In accessories you are having ease of access, and then you are able to find the on screen keyboard. Okay, just click on that, and immediately in your screen the virtual keyboard is appeared, on screen keyboard is appeared. Just use your mouse to click anywhere else, whatever the keys you want to use to type your letters, to type your numbers. Okay, so your request, your problem will be rectified immediately, right? And after once the work is completed, then you are able to purchase the new keyboard to have the permanent solution for that, right? Now we are coming to the question number 2. Meenakshi has stored various files in her laptop. Okay, कई तरह की फाइल्स स्टोर है उसके लैपटॉप में. She wants to view all the files with the detailed information including name, type, size and date modified. यानी कि वो जो है अपनी सारी फाइल्स को डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ देखना चाहती है. क्या नाम है, टाइप क्या है, साइज़ क्या है, किस डेट को मॉडिफाई किया गया है. सो सजेस्ट टू हर द व्यू फॉर्मेट. कौन सा व्यू फॉर्मेट इस्तेमाल करें विच वुड फुलफिल हर रिक्वायरमेंट, जो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे. Students, your YouTube comments are coming here, and that's good that you are trying to give the correct answer here, right? And if you've done any kind of mistake, I'm always there with you to solve any kind of problem, right? So now it's time to have the answer of question number 2. The answer is details view. Yes. अब आपको इसके लिए जो स्टेप्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, उसको आप यूज़ करिए. और यहाँ पे डिटेल व्यू एक ऐसा व्यू है जहाँ पर आप हर एक फाइल फोल्डर का टाइप, नेम, साइज़ वगैरह, डेट मॉडिफाइड, हर चीज़ आप देख सकते हैं आप. ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, that's the next question is multiple choice question. That's very interesting question for you, and you like it very much, right? So in question number 1, dash folder in Windows 7 manages document, म्यूज़िक, पिक्चर्स एंड अदर फाइल्स. ऐसा कौन सा फोल्डर है जो म्यूज़िक, पिक्चर्स और अदर फाइल को मैनेज करता है विंडोज 7 के अंदर? लाइब्रेरी फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स, थर्ड ऑप्शन कंप्यूटर, राइट? इन तीनों में से कौन सा है? ठीक है, आप अपने आंसर यूट्यूब कमेंट पे देते रहिए आप. सो द आंसर इज लाइब्रेरी. द आंसर इज लाइब्रेरी, राइट? Now we are coming to the question number 2.
Dash is the power saving state that allows a computer to quickly resume full power operation when you start working again. मतलब यहाँ पे ये बताना है कि ऐसा कौन सा पावर सेविंग स्टेट है जो हमें अलाउ करता है कि हम अपने फुल पावर ऑपरेशंस को रिज्यूम कर सकें, हम जब हम दोबारा काम करने जाते हैं. कहने का मतलब क्या है कि हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, सिस्टम पे काम करते वक्त कभी हमारी जो पावर है बहुत सारी वेस्ट हो जाती है. तो अब जब हम काम नहीं कर रहे हैं तो अगर हम बिजली लगातार सप्लाई करते रहेंगे कंप्यूटर को तो वहाँ पर हमारी पावर वेस्टेज होती है. ठीक है, तब हम उस समय हम क्या ऐसा करें जिससे कि हमारी पूरी की पूरी पावर हमारी बच जाए और जब हम दोबारा आएँ तो वहीं से स्टार्ट हो जहाँ हमने काम रोका था. Okay, so this is the meaning of second question now, and it's having three options. Number 1 sleep, number 2 busy, and number 3 hibernate. Right, these are the three options. Now let's have the answer. Answer is sleep. Sleep mode में जब आपका कंप्यूटर जाता है तो आपका जो भी कुछ आपने जहाँ पे रोका होगा वहीं पे आपका रुक जाएगा और आपकी जो फाइलें हैं वो वहीं पे स्टॉप हो जाएंगी और आपको जो पावर है, जो कंप्यूटर को चलाने के लिए जो बिजली खर्च हो रही है वो आपका पावर सेफ मोड में चला जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, सो राइट नाउ दीज आर द टू क्वेश्चंस. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इन MS Office 2010 द विड्थ ऑफ अ फाइल एक्सटेंशन इज डैश कैरेक्टर्स. मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर जब हम MS Office 2010 की बात करते हैं तो जो हम फाइल एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं हम, ठीक है, उस पर्टिकुलर फाइल के लिए, जैसे MS Word है, MS Excel है, वो कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए? 3, 4, 5. ओके, आंसर इज 4. ठीक है, जब कभी जैसे मैंने बताया MS Word का जो फाइल एक्सटेंशन है .docx है, .docx, राइट. अब .docx है आपका, तो यहाँ पर देखिए docx मिला करके टोटल 4 इसमें लेटर्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की. क्वेश्चन 4 में क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं यहाँ पर. डैश सेटिंग इज यूज टू चेंज द डिस्प्ले ऑफ द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन एंड द प्रिंटेड टेक्स्ट. मतलब ऐसा कौन सा सेटिंग है जिसका यूज़ करके हम टेक्स्ट के डिस्प्ले को हम चेंज कर सकते हैं या प्रिंटेड टेक्स्ट के जो डिस्प्ले उसको हम चेंज कर सकते हैं. फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, कलर है, क्या चीज़ है वो. ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं क्या है. आंसर होगा फॉन्ट. कि जब हम फॉन्ट को यूज़ करते हैं तो पूरे टेक्स्ट का जो डिस्प्ले है वो हमारा चेंज हो जाता है. ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. डैश व्यू डिस्प्लेज द गिगेंटिक आइकन्स ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर. मतलब ये हुआ बहुत, गिगेंटिक मतलब होता है बहुत बड़ा आइकन, एक्स्ट्रा लार्ज. ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर ऐसा कौन सा व्यू है जिसमें कि आइकन्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, फोल्डर्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं. कंटेंट्स, डिटेल, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन. आंसर होगा एक्स्ट्रा लार्ज आइकन. क्यों? क्योंकि गिगेंटिक का मतलब यही है. ठीक है, तो आप मीनिंग आपको क्वेश्चन का मतलब समझना है, राइट. So if you able to understand the meaning of your question, then easily you are able to solve the questions, right? So the correct answer is extra large icon. Okay, now so students, we are moving to the next slide to have more. So right now question number E is came here and the question is answer the following questions. The question number 1 say that what do you know about the Windows Explorer? It means Windows Explorer क्या होता है, क्या जानते हैं उसके बारे में आपको बताना है. Okay, so let's have the answer of this question. So this is the answer. It is used for viewing, exploring and organizing files in a computer. Windows Explorer का यूज़ हम अपने फाइल्स को देखने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम. It enable you to display directory structure and it includes drives, folder and files. मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी हमारे फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, ड्राइव्स हैं, उसको हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में देख सकते हैं हम. ओके, नाउ इन विंडोज एक्सप्लोरर containing 2 pans, left and right pan. Left pan is called navigation pan where you are able to see the disk drives and folder in hierarchical manner.
and right pane is the content pane where you will able to see the contents of disk and drives and folders, right? Whatever you have selected in the left pane. Okay students, so I hope the answer is very much clear to you, right? And if you have any kind of query related to any of the thing, you can just get in touch with me, right? Now it's time to have the question number 2. The question number 2 says that name the different formats, and the next part is briefly explain about any two format. दो फॉर्मेट के बारे में आपको समझाना भी है, right? Let's have the answer of this question. So this is the answer of this question. So the answer is different view formats are extra large icon, large icon, medium icon, small icons, list, details, tiles and content. Okay, these are the view formats here, right? An explanation about any of the two. So I have explained two, that is extra large icon. It displays the gigantic icons of files and folder, right? मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, मतलब कि आइकन इतने बड़े हो जाएंगे कि आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं आप. मोस्टली ये वीडियोस और इमेजेस के लिए यूज़ होता है ये. ओके, एंड इन डिटेल्स व्यू फॉर्मेट व्हाट यू विल सी, इट्स प्रोवाइड द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स एंड फोल्डर इंक्लूडिंग द नेम, टाइप, साइज एंड डेट मॉडिफाइड, राइट? So this is the question number 2 and I hope the answer is very much understandable by you. Okay, now it's time to move to the next slide. Next slide is how do you set the date and time for your computer. आप डेट और टाइम को किस तरीके से कंप्यूटर में सेट करते हैं, ठीक है? लेट्स हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर आपको डेट चेंज करना है तो क्या करेंगे हम? क्लिक ऑन स्टार्ट, go to the control panel, then you will click date and time. Then after date and time dialog box will be open and here click on change date and time. आपको कहाँ क्लिक करना है? change date and time पे क्लिक करना है and relevant dialog box will be appear. आप क्या करेंगे? आप select current day और जो भी आपका डे आपको फिक्स करना है या डेट के अंदर जो भी आपको मॉडिफिकेशंस करने हैं, जैसे आपको दिन, महीना, साल, जो भी आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं उसको चेंज करिए और फाइनली कर दीजिए ओके, ठीक है? ये प्रोसेस है आपका डेट चेंज करने का. अब हम आते हैं टाइम चेंज करने के लिए. यहाँ पर यही प्रोसेस आपको दोबारा रिपीट करना है. कैसे? स्टार्ट पे क्लिक किया, कंट्रोल पैनल में गए, डेट एंड टाइम पे क्लिक किया, डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया. अब यहाँ पर चेंज डेट एंड टाइम पे हमने क्लिक कर दिया, डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन हुआ एक नया. वहाँ पर हम क्या करेंगे? वहाँ पर हम डेट के बगल में ही आपका टाइम का होता है. वहाँ पे आपको जो आपका आवर्स हैं, मिनट्स हैं, सेकंड्स हैं, वहाँ पर आप सही टेक्स्ट बॉक्स में प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है? और जो आपको वहाँ पे छोटा सा एरो बना हुआ है, उस एरो की इस्तेमाल करके आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं आप, ठीक है? और फाइनली ओके कर दीजिए, आपका टाइम भी चेंज हो जाएगा, राइट? सो दिस इज़ द वे टू चेंज द डेट एज वेल एज टाइम. Okay, now it's time to move to the next question, that is what is a sleep mode. So दो लाइन का आंसर है ये. It is a power saving state that allows the computer to quickly resumes all the power operations when you start working again. मतलब ये एक ऐसा पावर सेविंग स्टेट है कंप्यूटर में जहाँ पर आप जहाँ पर अपने काम को स्टॉप करेंगे वहीं से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इसे हम बोलते हैं स्लीप मोड. ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे. सो टू मोर क्वेश्चंस आर देयर. नंबर 1, विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज द माउस सेटिंग. ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी हेल्प से आप माउस सेटिंग को चेंज करते हैं? सो लेट्स हैव द आंसर. आंसर इज माउस ऑप्शन. माउस ऑप्शन की हेल्प से कंट्रोल पैनल भी होता है ये. कंट्रोल पैनल में माउस ऑप्शन क्लिक करेंगे, माउस की सेटिंग्स आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप, राइट? Now question number 6, what is the importance of control panel in Windows? In Windows, answer is I have written 2 points. Number 1, it is used to make changes in appearance and current setting of the Windows. मतलब क्या हुआ कि आपके सिस्टम की जो भी अपीयरेंस है या करेंट सेटिंग्स है उसको हम चेंज कर सकते हैं हम. This setting nearly controls everything regarding Windows looks and works.
मतलब क्या हुआ, कंट्रोल पैनल की हेल्प से इसके जो वर्किंग है, जो इसके ऑपरेशंस हैं, उन सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे कंट्रोल पैनल का यूज़ हो गया। सो स्टूडेंट्स, राइट नाउ ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आर फिनिश्ड नाउ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। So students, right now you have understood each and everything. Now I hope each and everything is understandable by you, and I just want to have a request from my side that please don't forget to press the bell icon, because the bell icon gives you the one kind of notification for my latest videos, right? And please like and subscribe my YouTube channel, okay? So students, I hope you have enjoyed in this video and you have tried to understand each and everything. But students, whatever the queries you have, you can definitely able to ask your subject teacher, that is me, okay? And whatever the doubts comes in your mind related to this topic or any other topic, just share with you by using your WhatsApp, right? Or you can use the YouTube comments also, okay? So students, now it's time to came here to end this video, and we'll cover out the next few topics in new chapter, right? So thank you for watching this video. Keep watching the other videos and try to figure out some of the important points in the book also, okay? And finally, not the least, just subscribe my channel, share this video to other of your friends, and don't forget to press the bell icon so that you can have the notifications of my latest videos, okay? So thanks again for watching this.